أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10 کلاسز کے خلاصہ کے بعد آج ہم وسعت کی طرف آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا یہ سمجھ لیں کہ ہم اسم کو سمجھ رہے ہیں، اور اسم کے بارے میں ہم نے دو چیزیں سمجھ لی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی بھی اسم عربی زبان کا کوئی بھی اسم جو ناؤن ہے وہ مذکر ہوگا یا مونس ہوگا، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ مذکر ہے اور یہ مونس ہے، یہ ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ کوئی بھی لفظ یا تو واحد ہوگا یعنی کہ ایک، یا مثنی ہوگا یعنی کہ دو یعنی جول، اور پھر یا تو جمع ہوگا یا یعنی کہ دو سے زائد، یا پھر 3 یا 10 یا 1000 یا 100 یعنی کہ عدد کے اعتبار سے ہم نے دیکھ لیا ہے۔ آج ہم چلتے ہیں وسعت کی طرف۔ وسعت، اس کو سمجھ لیں کہ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں وسعت کے بارے میں، کہ ہو سکتا ہے یہ جو ٹاپک ہے یہ آج کا یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کے لیے اور دروازے کھول دے، اور ٹاپکس کے دروازے کھول دے، کیونکہ وسعت کو سمجھنے سے پہلے آپ اتنا ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ وسعت کو ڈسکس کرتے وقت آپ کے سامنے ایسی بہت سی چیزیں آئیں گی جو آپ نے ابھی نہیں پڑھی ہوئی ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ہم نے ابھی نہیں پڑھی، وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو وسعت میں سب سے پہلے کہ اسم کس طرح ہوگا، کتنی طرح کا ہوگا، مثلا جیسے جنس کے حوالے سے اسم یا مذکر ہوتا ہے یا مونس ہوتا ہے، اسی طرح عدد کے حوالے سے جو اسم ہے وہ واحد ہوتا ہے، مثنی ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وسعت کے حوالے سے اسم یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، معرفہ یا نکرہ، ڈیفینیٹ ناؤن یعنی کہ معرفہ یعنی کہ ڈیفینیٹ ناؤن، اور نکرہ یعنی کہ انڈیفینیٹ ناؤن کے طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں، اور آسان الفاظ میں اسے معرفہ کو پراپر ناؤن اور نکرہ کو کامن ناؤن بھی کہا جاتا ہے۔ خیر، تو معرفہ سے مراد وہ اسم ہوگا جو خاص ہوگا، یعنی کوئی خاص اسم معرفہ ہوگا، اور نکرہ سے مراد عام اسم ہوگا۔ مثلا میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ ہمارے پاس ایک کلاس روم ہے، اس کلاس روم میں بہت سے لڑکے بیٹھے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں اور لڑکے ہیں، وہ بیٹھے ہیں۔ تو اگر میں کہوں لڑکے، اس کو بھی میں لڑکا کہہ سکتی ہوں، اس کو بھی لڑکا کہہ سکتی ہوں، ان تمام کو میں لڑکا کہہ سکتی ہوں، یا اس کو بھی شاگرد کہوں، اس کو بھی شاگرد، اس کو بھی شاگرد۔ تو یہ بہت نکرہ ہیں، عام، یعنی کسی یہاں پر بیٹھے کسی بھی اسٹوڈنٹس کے لیے، کسی بھی لڑکے کے لیے لڑکا استعمال ہو سکتا ہے، یہ نکرہ ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کسی کا نام ہو حامد، تو میں کہوں کہ حامد، تو میں ہر لڑکے کو حامد نہیں کہہ سکتی۔ اسی طرح اگر کسی کا نام یہاں پر احمد ہو تو میں ہر لڑکے کو احمد نہیں کہہ سکتی۔ صحیح بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جو حامد ہوگا وہ ایک ہوگا تمام کلاس میں، یا زیادہ سے زیادہ 2 ہوں گے، یا جو احمد ہوگا یہ بھی تمام کلاس میں جو ایک ہی ہوگا۔ تو احمد ہوا معرفہ یعنی کہ خاص، حامد ہوا معرفہ یعنی کہ خاص، باقی اگر لڑکے ہوئے یا پھر شاگرد تو یہ لفظ تمام کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے یہ نکرہ ہوا۔ تو ایک بات جو یہاں پر آپ نے نوٹ کی ہوگی وہ یہ کہ معرفہ کے مقابلے میں جو نکرہ اسماء ہیں یعنی عام اسماء وہ زیادہ ہیں۔ مثلا دیکھیں شہر تو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، شہر کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، اسی طرح ملک بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ہر شہر کو لاہور یا ہر ملک کو پاکستان نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی ہم کسی ملک کو دوسرے ملک کا نام کہہ سکتے ہیں۔ تو معرفہ کے مقابلے میں نکرہ اسماء کی جو تعداد ہے وہ زیادہ بڑی ہے، تو ہم بڑی تعداد کی طرف نہیں چلتے، ہم چھوٹی تعداد کو سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے جنس میں ہم نے مذکر کو نہیں پڑھا تھا بلکہ مونس کو پڑھا۔ جب ہم نے مونس کو پڑھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کوئی اسم اگر مونس نہ ہو تو وہ لازماً مذکر ہوگا۔ یہاں پر بھی آپ نے یہی بات سمجھنی ہے کہ اگر کوئی بھی اسم معرفہ کی لسٹ میں نہ ہوا تو وہ نکرہ ہوگا۔ ہم یہاں پر معرفہ اسماء کی لسٹ پڑھیں گے، یعنی کہ کون کون سے اسماء ہیں جو خاص استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، پھر اگر اس لسٹ میں کوئی اسم نہ آیا تو ہم اسے نکرہ کہیں گے۔ صحیح؟ تو معرفہ کی لسٹ پڑھتے ہوئے
दोबारा सुन लें, मारिफा की लिस्ट पढ़ते हुए आपके सामने बहुत सी ऐसी बातें आएंगी जिन्हें आप नहीं जानते, जो आपके इल्म में नहीं है। उनके बारे में आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस ये लिस्ट मुकम्मल करें, उसके बाद हम उन तमाम बातों को आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर समझेंगे, साथ में ज़रूर समझेंगे। बहुत सी बातें अभी रहती हैं, अभी हमारी शुरुआत है। तो हम शुरू करते हैं मारिफा की लिस्ट। जो सबसे पहले है मारिफा में आता है वो है इस्मे आलम। इस्मे आलम यानी कि किसी भी शख्स, किसी भी जगह और किसी भी चीज़ का ख़ास नाम, ये होता है इसमें आलम। मसलन यहाँ पर ज़ैद है, ज़ैद। अब तमाम लोगों का नाम तो ज़ैद नहीं होगा, तो ज़ैद क्या हुआ, मारिफा हुआ, यानी कि प्रॉपर नाउन। और उसके बाद फ़ातिमा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फ़ातिमा, तो फ़ातिमा भी सबका नाम नहीं होता, ये भी मारिफा हुई। उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान भी तमाम मुल्कों का नाम नहीं होता, तो ये भी एक जगह का नाम है पाकिस्तान, और ये भी मारिफा है। तो किसी भी शख्स, किसी भी जगह या किसी भी चीज़ का नाम, ख़ास चीज़ का नाम, तो वो क्या होगा, इसमें अलम, और ये मारिफा होगा। जैसे हम खुद अपनी ज़बानों में देखते हैं, ख़ासकर इंग्लिश ज़बान में हम देखते हैं कि कोई भी जो प्रॉपर नाउन हो ना, प्रॉपर नाउन अंग्रेज़ी ज़बान का, वो अरबी में इसमें आलम होगा, यानी कि कोई भी ख़ास नाम, इसमें आलम, ख़ास नाम। तो फिर वो किसी चीज़ का हो सकता है, फिर वो किसी जगह का हो सकता है, फिर वो किसी शख्स का भी हो सकता है। दूसरी जो पॉइंट है मारिफा में, वो है ज़मायर। इसमें ज़मायर यानी कि प्रोनाउंस, ये तमाम जो प्रोनाउंस हैं ये भी अरबी ज़बान में मारिफा होते हैं, यानी कि ख़ास होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़मायर जो हमने अभी नहीं पढ़े, हमें पढ़ने हैं इंशाल्लाह आगे, वो मारिफा होंगे या नकरा होंगे, तो आपको बस इतना याद रखना है कि ज़मायर मारिफा होते हैं, ज़मायर नकरा की लिस्ट में नहीं आते। ज़मायर की मिसाल यहाँ पर देख लें, मसलन हुआ, हुआ के माने है वो, हुआ यानी कि वो। और इसी तरह हिया, हिया के माने हैं वो लड़की, हुआ वो लड़का और हिया वो लड़की। उसके बाद जो तीसरी पॉइंट है यहाँ पर मारिफा की, वो है इशारा। इसमें इशारा, ऐसे अस्मा जो इशारे के लिए इस्तेमाल होते हों, और हमने अभी ये भी नहीं पढ़े हैं, ये भी हमने इंशाल्लाह आगे पढ़ने हैं, जिसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, यानी कि किसी की तरफ इशारा करने वाले, दिस दैट दीज दोस। तो हमारे पास एक लफ्ज़ है हादा, ये आपने पढ़ा होगा, हादा। हादा के माने हैं ये, हादा यानी कि दिस, ये। और ज़ालिका, ज़ालिका के माने हैं वो, ज़ालिका वो, डेट। तो इसी तरह दीस के लिए क्या होगा, दोस्त के लिए क्या होगा, ये ज़मायर, ये इशारा, अस्मा इशारा हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अभी आपने बस ये लिस्ट मुकम्मल करनी है, सही है। उसके बाद, और परेशान बिल्कुल नहीं होना। उसके बाद जो चौथी चीज़ है जो मारिफा में आती है, वो है इस अस्माए मौसूल, अस्माए मौसूल। अभी अस्माए मौसूल क्या हैं, इन्हें भी हमने अभी टच नहीं किया, बस ये लिस्ट मुकम्मल करने के लिए हम एक दो एग्जांपल यहाँ पर लिख रहे हैं। अस्माए मौसूल से आप समझ सकते हैं इंग्लिश ज़बान के रिलेटिव प्रोनाउंस। जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जिसे हम जो, जैसा, जो के, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो अस्माए मौसूल होते हैं। मसलन एक लफ्ज़ कुरान पाक में बहुत इस्तेमाल होता है, अल्लज़ी, अल्लज़ी, इसके माने हैं जो, जो। जैसे मैं कहती हूँ ना, मैंने उस लड़की को देखा जो कल मिली थी, जो कल मिली थी, तो ये जो है, ये जो इसमें मौसूल है। इसी तरह जो की जो जमा होती है वो अल्लज़ीना होती है, यानी कि ये जो एक के लिए और वो जमा के लिए। खैर, इसको हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, अभी आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। उसके बाद जो फिफ्थ है मुसात में, वो आते हैं, आपको ये समझना है कि ये जो या लफ्ज़ है, या ज़ैद, या के बाद अगर कोई भी लफ्ज़ आए, ज़ैद तो वैसे भी मारिफा है क्योंकि ये ज़ैद इसमें अलम में आ जाता है, तो हम इसको, इस मिसाल को छोड़ देते हैं अभी। मसलन रजुल, रजुल के माने होते हैं आदमी, कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को हम कहते हैं रजुल, तो वो आम है। हम बहुत से आदमी हैं, हर कोई आदमी तो ख़ास नहीं होता, दुनिया में जो भी मर्द हजरात हैं हम उनको आदमी ही कहते हैं। तो रजुल एक नकरा इसम है, लेकिन जब हम रजुल को या के साथ लिखेंगे, या रजुल, तो ये मारिफा हो जाएगा, सही। अब इसका नाम क्या है, इसको मैं इंशाल्लाह जब हम या के बारे में पढ़ेंगे, या को हरफे निदा कहा जाता है, हरफे निदा। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि इसका नाम क्या है। अभी हमने नामों में बिल्कुल नहीं उलझना, बस ये मारिफा की लिस्ट मुकम्मल करनी। तो ये जो 5 हमने
मारफा की अक़साम पढ़ी हैं, इसको थोड़ा दोहरा कर फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, आपके ज़हन में सवाल आया होगा कि कितनी और अक़साम हैं और कितनी लिस्ट में अभी पॉइंट्स रहते हैं, नंबर्स रहते हैं। तो वो टोटल 7 हैं। हमने 5 पढ़े हैं, बाकी 2 हमारे रहते हैं, उनको भी हम पढ़ते हैं। अभी ये समझ लें कि कोई भी इसमें अलम यानी कि ख़ास नाम चीज़ का, जगह का या शख्स का वो मारफा होगा। ज़मायर अरबी ज़बान में मारफा होंगे। अस्माए इशारा जो इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी मारफा होंगे। अस्माए मौसूल जो कि जैसा इस तरह के अल्फाज ये भी मारफा होंगे, यानी इनको भी जब हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो मारफा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और या के बाद जो भी नकरा इसम आए तो उसे हम मारिफा कहेंगे। यानी कि रजुल अगर हम अकेला लिखें तो ये नकरा है, लेकिन जब या के साथ लिखें तो ये मारिफा बन जाएगा। तो इन 5 अक़साम को समझ लेने के बाद अब हम छठी किस्म के तरफ चलते हैं, और ये भी 2 अल्फाज का मजमुआ है। जैसे देखें कि यहाँ पर ये इसमें अलम भी एक है, हुआ, या, हाज़ा, ज़ालिका, अल्लज़ी, अल्लज़ीना, ये एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर ये 2 है। या रजुल ये 2 है, या अलग है और रजुल एक अलग है। तो इसी तरह ये जो छठी किस्म है इसमें भी 2 अल्फाज आएंगे, और अभी ये हमें समझ में नहीं आएगी। समझ में इसलिए नहीं आएगी कि हमने अभी 2 अल्फाज को नहीं पढ़ा हुआ है। जब हम इन 2 अल्फाज को आपस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब हम 2 अल्फाज को आपस में जोड़ना सीखेंगे, उनकी माने करना सीखेंगे, तो ये ज़्यादा हमें समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना समझ लें कि गुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का, ये एक मिसाल में दे रही हूँ, ठीक है। गुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का गुलाम। तो यहाँ पर जो गुलाम है, अगर हम ज़ैद को छोड़कर फिलहाल गुलाम लफ्ज़ देखें तो गुलाम तो कोई भी हो सकता है, बहुत से गुलाम होते हैं, तो ये कोई ख़ास नहीं है, ये नकरा इसम है। लेकिन इसकी निस्बत जो है मारिफा की तरफ की जा रही है, इसको मारिफा के साथ जोड़ा जा रहा है। बस यूँ समझें कि अगर किसी नकरा इसम को किसी मारिफा इसम के साथ जोड़ा जाए, जैसे देखिए ये ज़ैद है, ये इसमें अलम है, ये मारिफा है। ज़ैद को हमने जोड़ा है गुलाम के साथ, यानी ज़ैद का गुलाम। इसका तर्जुमा कैसे होगा? ज़ैद का गुलाम। तो जो गुलाम है उसकी निस्बत किसके साथ की जा रही है? ज़ैद के साथ। यानी बताया जा रहा है कि ये गुलाम किसका है? ये गुलाम ज़ैद का है। तो बस इतनी पॉइंट समझ लें, बहुत छोटी सी, कि जब हम किसी नकरा इसम को मारिफा के साथ मिलाएंगे तो फिर वो नकरा इसम भी मारिफा हो जाएगा। सही, जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और कुछ ही दिनों में जल्दी ही पढ़ेंगे, तो तब हमें ये बात समझ में आसानी से आ जाएगी। अभी आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये अभी यूँ समझे कि खुलने हैं दरवाजे हमारे ऊपर, ज़मायर के दरवाजे खुलने हैं, इशारा के दरवाजे खुलने हैं, अस्मा मौसूल के दरवाजे खुलने हैं, और इसी तरह हरफ़े निदा के दरवाजे खुलने हैं। मुरक्कबात के 2 अल्फाज, 3 अल्फाज, 4 अल्फाज, इनको आपस में कैसे जोड़ा जाए, इस तरह के मुरक्कबात, जुमले बनाना, इनकम्प्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, इस तरह की बहुत सी बातें अभी आनी है। तो अभी आपने थोड़ा सब्र रखना है और अल्लाह ताला से इस्तकामत की दुआ ज़रूर करनी है। तो ये हो गई 6 अक़साम जो हमने मारिफा में पढ़ी, और हमारी 7वीं किस्म है जो बहुत ही ज़्यादा आम है, वो आपके सामने कुरान पाक का एक बहुत बड़ा हिस्सा खोल देगी। जो 7वीं किस्म है वो बहुत ही ज़्यादा आम है, और इसको पढ़ने में हमें वक्त भी लग सकता है, तो हम इसको इंशाल्लाह कल पर छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही गहराई से और अच्छे से समझने के लिए हमारा माइंड भी फ्रेश होना चाहिए, और हम उसके लिए तैयार भी रहें, और वो किस्म समझ लेने के बाद कुरान का बहुत हिस्सा हमारे सामने वाज़ेह हो जाएगा, तो हम वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।